अभी मैं जस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर निकल करके आया और दिस इज़ द सिग्नल और वी कैन से जेब्रा क्रॉसिंग। इसको हम जैसे ही क्रॉस करेंगे इसके बाद हम चला जाएंगे हॉस्टल नंबर 6 और आगे जो है वो यहाँ की एनाटॉमी बिल्डिंग जनरल मेडिसिन कोर्सेज के लिए वो आगे ही। आप यहाँ देख सकते हो एक मीनू बोल करके एक इंडियन फ्लैग के साथ डला हुआ। ये भी यहाँ का एक इंडियन रेस्टोरेंट्स है क्योंकि जो भी बच्चे बेसिकली इंडियन फूड्स चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रनिंग सिटी है। आप देख सकते हैं कि अभी ग्रीन है तो ही हम इसको यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि इनका यहाँ एंट्रेंस गेट है, बट बिफोर दैट यू कैन सी द सराउंडिंग्स ऑफ दिस। हियर वी हैव ए वन मोर एंट्रेंस। You can see that there also if you don't have the card, if you don't have the pass, you cannot come into this particular building also. So overall that is the entry place, that is for the hostel number 6. From this again here we have a entry point. So security checkpoints is everywhere, safe and secure environment. Now let's move. We'll go inside of this building and we'll try to understand how is the rooms facility. Here many of the buildings, many of the rooms, they have a balconies also. You can see connected. It's a 9th floor building. There is a CCTV camera. So everything is very safe and secure environment near to the university academic buildings, nearby university anatomy building for the general medicine course. Everything is very nearby. Stay connected. We'll move inside the university room, that is university hostel room, and we'll try to understand what are the facilities we have. Thank you. Friends, now I am inside the hostel number 6. You can see this is the security part. You have to use your card and after that only you can come inside of this. I am very proud to say that I am in Penjai State University and basically in the hostel which name is given Maharana Pratap Indian Student Hostel. In Russia I can see Maharana Pratap Indian Student Hostel, and these are the details of the who is the hostel captain, vice captain, floor captain, all the details cultural secretary, then different sections for the medical secretary, sports secretary, president. Everything is planned over here in a very positive way so that students are always stay tuned, stay connected with each other. Let's move to the university hostel, then we can explore more about that. This is the reception area of this particular hostel. So here again we have the steps systems also, lift facility also. We'll go now inside the hostel room to see the actual environment over here. Thank you. Yes friends, as I am exploring today Penjai State University, now I am in a first year students hostel. It's a 3-seater room, well decorated room. Come with me and I'll just show how and what kind of facilities they have. As yesterday they have come to Penja. We traveled together from Moscow to Penja. So it's a 3-seater room given by the university. Everything is new. You can see here bed covers, pillow covers, everything is given by the university people. And here for the 3 students, 3 separate table chairs, cupboard for keeping their baggages. Everything is very spacious room, okay, overall. And I'll just try to understand with this new student who came from India, Maharashtra, and what that overall experience and all. आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक मोरे से। अभिषेक। तो अभिषेक, जैसे कि आप अभी मॉस्को से साथ में भी हमारे साथ ट्रैवल करके आए हैं, है ना? तो ओवरऑल आपका जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। क्या अच्छा लगा आपको इसमें, जैसे कि आप जैसे मॉस्को में जैसे पहुंचे इमिग्रेशन? सुबह मॉस्को में पहुंचे तो पहुंचते ही हमें सीनियर भाई साहब सब मिल गए और उन्होंने हमें पहले सब सिम कार्ड दिए योटा के, तो घर पे बात करने के लिए आपके जी हो गए। ठीक है। तो वो सब होने के बाद हमें पानी भी नहीं पिलाया, खाने के लिए कुछ दिया और बाद में बस आई, बस में बिठा के फिर सब पहले तो फ्रूट्स दिए, फिर जूस दिया, फिर वो चिप्स थे, स्नैक्स थे, वो सब दिया और मजे करते करते आए सर। अच्छा।
मतलब एक ओवरऑल अच्छा जर्नी रहा हाँ, बहुत आपका अच्छा। मॉस्को से लेकर के पेंजा आने कुछ पेंजा टेंशन ही नहीं हुआ कि दूसरे देश में जा रहे हैं क्या कैसे होगा, सब फेमिलियर थे, सभी चीज़ें इंडियन- फैमिलियर हाँ, हैं। इंडियन ही थे सब, इसलिए और कुछ थ्रू आउट लगा नहीं। रास्ते में आने के लिए आपके सामान वगैरह उठाना बैठाना उसके लिए भी आपको उन्होंने मदद किया। हाँ बहुत मदद की, सीनियर भाई थे सब, तो उन्होंने सब कर दिया, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब आप आने के बाद हाँ, आराम से आए, आराम से। एरोप्लेन से उतरे और बस में बैठ के सीधा इधर ही आए। इधर आते ही सब खाना पीना रेडी था। अच्छा, greetings रात में खाने के बाद जब आपको जो खाना मिला बेसिकली आपको ऐसा फील हुआ कि आप रशिया में आके खाना खा रहे थे नहीं, भारत वाले? बिल्कुल नहीं, घर का ही खाना लगा, टेस्ट इट वाज रियली गुड। रियली गुड ओवरऑल, वेरी गुड। तो आपको आने के बाद जो यहाँ हॉस्टल्स वगैरह जब मिला, जब रूम के अंदर आए तो कैसा फील हुआ आने के साथ? अभी तो दिख रहा है कि सबने आप लोगों ने अपना बेडशीट वगैरह समेटा नहीं है, छोड़ के चले गए हैं, तो ओवरऑल आपको कैसा फील रहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है रूम वैसे तो। आपको यहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी दोनों की हाँ, व्यवस्था है? दोनों दोनों। अच्छा, या इंडियन टॉयलेट फैसिलिटीज़ है? Yes, yes. जेट वगैरह लगे हुए हैं? कोई वो प्रॉब्लम? बहुत अच्छा लगा जेट। हाँ, नहीं तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह में भी कहीं भी जेट सिस्टम्स नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, बट यार एवरीथिंग इज देयर, करेक्ट ना? तो आपको यहाँ किसी तरह की कोई समस्याएं आने के बाद अभी तक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस देंगे? ये तो मैं ये पहला रिकमेंड दूंगा, क्योंकि इधर का जो रिजल्ट है वो तो सबसे बढ़िया है रशिया में। और अपने सूरत के ही सर, वो भी इधर से ही स्टडी किया है, तो फिर और यहाँ पे प्रोफेसर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब साथ में ही आते हैं अब हमारे, और उन्होंने ही हमारा पासपोर्ट वीजा सब कर दिया, कुछ करा दिया है ना? और पहला टिकट भी उन्होंने किया कराया। और मतलब आपको पूरा कुछ भी सिर्फ डिसीजन लेना है आने Yes, के लिए yes. और पैसे की व्यवस्था करनी है, बराबर, बराबर। बाकी आपका सब पूरा सरकार काम हम लोग जो है हमारी कंपनी की तरफ से आपके Yes, yes. सब कुछ करा दिए गए, करेक्ट ना? Yes. किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। आपके तो मैं पता चला कि आप किसी आपके बड़े भैया भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वो 3rd ईयर में है। अच्छा, अभी वो 3rd ईयर में है। भैया को इतना अच्छा लगा कि पापा को बताया उसने, और पापा भी मान गए। अच्छा, एक ही बात पे मान गए कि चल गया, दादा है तो फिर मुझको भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात problem नहीं है। आप महाराष्ट्र में कहाँ से रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र में नंदुरबार करके शहर है। नंदुरबार से। अच्छा, पुणे के आजू बाजू में या दूर है वो पुणे से? नहीं, धुलिया के जो अच्छा, धूलिया की तरफ में आता है ये। अच्छा, इसमें ने एक चीज़ और भी देखा, जैसे कि मैं तो बहुत सारे रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बहुत सारे रशियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे को मैं एडमिशन भी कराता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो देखा कि गर्ल्स के रहने का फैसिलिटी और बॉयज़ के रहने का फैसिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट डिफरेंट हो गए। और दोनों अलग अलग जोन में है, जो कि एक इंडियन पेरेंट्स के मन में जो संदेह चलती है कि वहाँ जाके वो कैसे सेटल करेंगे, क्या करेंगे, कैसी प्राइवेसी उसकी रहेगी, इन सब का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनसिक्योरिटी होती ही नहीं कि मेरी बेटी गई है, मेरा बेटा गया है, कुछ होगा तो नहीं ऐसा। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। चलिए, ओवरऑल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अभिषेक। ठीक है सर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जिस पर्पस से आप यहाँ आए हो वो पर्पस को पूरा करना है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द मोर वीडियोज रिलेटेड टू द पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटीज। थैंक यू।